उत्तर महावीर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने 11वीं स्मार्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में परिवहन विभाग की उपलब्धियां गिनाई और भविष्य के विकास का खाका खींचा। उम्मीद जताई कि टीएमयू इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स इनोवेटिव होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने कहा, आज के समय में परिवहन के प्रबंधन में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उल्लेखनीय योगदान है। परिवहन प्रबंधन विशेष तौर पर दुर्घटना रहित परिवहन, पार्किंग प्रबंधन, आधुनिक ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कर संग्रहण में स्मार्ट टेक्नोलॉजी की महती भूमिका है। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअली बोल रहे थे। It is my pleasure to connect with you virtually on International Conference Smart 2022 organized by Tirthankar Mahavir University. I am glad to know that the conference is bringing together eminent speakers, researchers and engineers in the area of system modeling across the country. I am very confident that this conference will witness high quality research papers in the field of computer science and information technology for developing application to solve our problems. The people like you who are the talented people, we need to find out what is exactly the happy human index. Every family should have a good house, clean water, clean environment, free from pollution, and at really by honest way they can get earning by which they can even sustainable growth, which is very important for the development of the society. You can define many parameters, many indicators for happy human index, and the both of the mantra Sarve Pi Sukhana Santu and happy human index, the meaning is same. The literal meaning of this mantra is that everyone should be happy, everyone should be in good health, and everyone should be prosperous. The real essence is peace should prevail in the universe, in our hearts, in our health, and among us all being. May everyone be happy, may all be free from weakness. Let everyone see the good around us, and let no one have any sufferings, either physically, mentally, or emotionally. In the year 1972, the fourth king of Bhutan, King Jime Singye Wangchuk, declared gross national happiness is more important than gross domestic products. Friends, for professional enrichment, human relationship is very important. The good relationship develops an atmosphere of trust at workplace. I am always giving an example of a mathematical equation that we know the difference in formulas of a plus b and a plus b bracket square. The additional 2ab component in a plus b bracket square comes from collective team spirit. This is very important. The strong team helps to deliver difficult tasks in effective manner. All of us as one of the team should take sincere efforts for development of human communities, and I wish the conference Smart 2022 a great success. With these words, I thank Tirthankar Mahavir University Muradabad for providing me this platform to share my views. Thank you, namaskar, and best wishes to all of you for your future life. Thank you very much. टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन ने अपने अति संक्षिप्त संबोधन में मुख्य अतिथि श्री गडकरी की गरिमामयी वर्चुअली उपस्थिति पर विशेष आभार प्रकट किया। साथ ही भविष्य में व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सिटी में उपस्थित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। इससे पूर्व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके स्मार्ट 2022 का शंखनाद हुआ। बीसीए, बीटेक, बीटेक सीएस, बीटेक आई नर्चर, बीएससी एनिमेशन के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना पर मनमोहिनी नृत्य प्रस्तुति दी। इस मौके पर कुलाधिपति सुरेश जैन, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल, टीएमयू के जीवीसी मनीष जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन, टीएमयू के वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह, यूएसआईसीएनटी जीजीएसआईपीयू के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन राजपाल, आईआईटी कानपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर वीके जैन और एमजेपीआरयू बरेली के सीएसएनआईटी विभाग के हेड और प्रोफेसर डॉक्टर एसएस बेदी, कॉन्फ्रेंस जनरल चेयर एवं एफओईएनसीसी एसआईटी के निदेशक एवं प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, एसोसिएट डीन प्रोफेसर मंजुला जैन, डॉक्टर ज्योतिपुरी आदि की
गरिमामयी उपस्थिति रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान 8 सत्रों में 98 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का विमोचन भी हुआ। इससे पूर्व ब्लेंडेड मोड में हुई इस कॉन्फ्रेंस में अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने आत्मनिर्भर बनने के लिए दर्जनों छोटे-छोटे सुझाव देते हुए कहा कि दुनिया के नामचीन उद्योगपति बिल गेट्स हो या वॉरेन बुफेट, इन्होंने कम उम्र में ही अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था। प्रोफेसर मित्तल ने कहा, भारत युवाओं का देश है। युवाओं की नव सोच और ज्यादा ऊर्जावान होने के कारण वे भी जल्दी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस आदि में अपना बहुमूल्य विकास दे सकते हैं। इससे खुशहाली और आर्थिक उन्नति होगी। उदाहरण के तौर पर मुरादाबाद आत्मनिर्भर बनेगा तो यूपी के साथ साथ भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव कल्याण और समाज में बदलाव के लिए करें। ट्रांसफॉर्मेशन की पुरजोर वकालत करते हुए कहा, आसपास की प्रॉब्लम्स पर पैनी नजर रखें। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नई सोच समस्याओं के समाधान में मील का पत्थर साबित होगी। अंत में युवाओं को पंचकोश मूल मंत्र भी दिया। टीएमयू के वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा, प्रॉब्लम्स का समाधान बाहर ढूंढने से नहीं, अपने अंदर से ही मिलेगा। कॉन्फ्रेंस की थीम एजुकेशन 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बोले, इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक ही चुनौतियों का सामना करने के लिए भी युवाओं को तैयार करते हैं। अंत में उन्होंने हायर ऑर्डर थिंकिंग को विकसित करने की पुरजोर वकालत की। कॉन्फ्रेंस चेयर एवं FOECS के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अशेंद्र कुमार सक्सेना की गरिमामयी मौजूदगी रही। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन USICNT GGSIPU के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन राजपाल, IIT कानपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर VK जैन और MJPRU बरेली के CSNIT विभाग के हेड ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर SS बेदी ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कॉन्फ्रेंस में IEE के ऑब्जर्वर KC मिश्रा, IEE के ऑब्जर्वर डॉक्टर वरुण कुमार कक्कड़, प्रोफेसर हरबंश दीक्षित, डॉक्टर शंभू भारद्वाज, नवनीत बिश्नोई, प्रदीप गुप्ता, मनोज गुप्ता, ज्योति रंजन लाल, मनीष तिवारी, डॉक्टर संदीप वर्मा, आदित्य जैन, निकिता जैन, डॉक्टर प्रियांक सिंघल, रूपल गुप्ता, अजय तिवारी, डॉक्टर पंकज गोस्वामी, डॉक्टर गरिमा गोस्वामी, अनु शर्मा, शिखा गंभीर आदि की भी मौजूदगी रही। हार्वर्ड में मैं एक मास्टर्स इन एजुकेशन लीडरशिप का कोर्स कर रहा हूँ, जो 1 साल का कोर्स है। और इस कोर्स में जब दाखिला लेने का मन हुआ था और जब जाने का फैसला किया था, तो इसी सोच से किया था कि ये डिग्री मेरी डिग्री अपनी नहीं होगी। ये डिग्री यहाँ पे विराजमान जितने भी छात्र छात्राएं उनके नाम होगा और आने वाले जितने भी छात्र छात्राएं होंगे उनके नाम होगा। ये डिग्री मेरी अकेले की डिग्री नहीं है, आप सबकी डिग्री है। और मैं चाहता हूं कि मेरा मन ये है कि हम में से सब लोग तो कोई हार्वर्ड नहीं जा सकता, ऑक्सफोर्ड नहीं जा सकता, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर ऐसा एक माहौल बनाएं कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसा ही यहाँ पे हम सबको लगे। और यही मेरी मंशा है। इसी मंशा के साथ मैं गया था। हमारी जो ये एक परंपरा चल रही है, 10 साल हो गए स्मार्ट कॉन्फ्रेंस को, अगले 10 साल भी और अच्छे हों। नितिन गडकरी जैसे लोग हमारे यहाँ पे आए, वर्चुअली नहीं असली में भी आए और यहाँ पे देखें और बच्चों से इंटरेक्ट करें, ये ऐसी मेरी आशा है। और थैंक यू सो मच।